ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೇ ಪಿರಿಯೋಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಒಂದು 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರಲ್ಲಿ इदेवला प्रेजेंटली 118 एलिमेंट्स है. ना पीरियोडिक टेबल में कितने 118 एलिमेंट्स है. तो वो जो पीरियोडिक टेबल हमारे आंखों के सामने जो दिखता है, तो वो उसमें जो 118 एलिमेंट्स हैं, तो वो जो 118 एलिमेंट्स दैट एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स के बारे में जो स्टडी एंड वी शुड नो द एलिमेंट्स. एलिमेंट्स क्या होते हैं वो हमको जानना है. व्हाट आर द एलिमेंट्स? एलिमेंट्स ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. एलिमेंट्स ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. व्हाट आर द एलिमेंट्स? So elements वो चीज है, those are the substances. Elements are the substances which cannot decompose by further by physical or chemical simple means. So ये जो elements होते हैं, these are the substances which cannot be decomposed by ordinary physical and chemical processes, chemical means. तो ये जो है ना एलिमेंट्स को हम इजीली हम जो है ना ऑर्डिनरी मेथड से जो है ना उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. So these are the substances which cannot be decomposed by ordinary physical or chemical means. Ordinary chemical ಮತ್ತು physical means ಅದಕ್ಕೆ decompose ಮಾಡಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. So those are the elements ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. नेक्स्ट ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಲಿಯಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಥಿಯಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರೀಬಹುದು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರೀಬಹುದು, ಹೀಲಿಯಂ ಬರೀಬಹುದು, ಲಿಥಿಯಂ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಬರೀಬಹುದು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಬರೀಬಹುದು, ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಹೌದಾ, ಸಿಲ್ವರ್, ಗೋಲ್ಡ್, mercury, copper, ಹೌದಾ, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟು 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿರ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ where they are present in our periodic table. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಅಪ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಅಪ್ ಟು 30 to 40 elements names along with the atomic number. Atomic number ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So these are the elements. The valencies. Valencies. So in this course you have to know the valencies. क्या होते हैं? valency ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So ಈ ಒಂದು valencies, these valencies nothing but the combining capacity of an element with other to form a compound or a molecule. To form a compound or molecule. So ये जो valencies होते हैं, क्या होता है valencies? The
Valencies is nothing but the combining capacity of an element to other elements. दूसरे एलिमेंट के साथ वो कैसा जो कंबाइन हो रहा है, कितना जो उसका कैपेसिटी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है. So that is what we call it as the valencies. For example, have a hydrogen. So hydrogen, this having a valency 1 means its combining capacity is 1. इसका combining capacity क्या होता है यहाँ पे 1, इसलिए इसका valency क्या है 1 है. सोडियम उसी तरह that having a combining capacity with the other elements, this is also 1. इसका भी combining capacity क्या होता है यहाँ पे 1 है, तो इसका वैलेंसी 1 बोलते हैं इसको. उसी तरह यहाँ पे जो अनदर जो मैग्नीशियम है Mg, इसका जो कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है ना यहाँ पे 2 है, तो दो एलिमेंट के साथ जो है ना वो कंबाइन हो सकता है, तो इसका वैलेंसी जो है ना 2 + 2 है इसका वैलेंसी. सो 2 है कंबाइनिंग कैपेसिटी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे Cl है, इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी आल्सो 1 -1 रहता है इसका. सो लाइक दैट फॉर एग्जांपल सोडियम है समझो, तो सोडियम दूसरे कितने एलिमेंट के साथ वो जो है ना कंबाइन हो सकता है 1. फॉर एग्जांपल सोडियम Cl NaCl, इस तरीके से जो है मैं यहाँ पे लिख सकते हैं. अगर Mg लिखना है, Mg कितना इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी 2Cl, तो 2 कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 एलिमेंट के साथ जो है ना वो कंबाइन हो सकता है, तो ये MgCl2 इस तरीके से हम जो है ना इसको लिख सकते हैं. और हैप्पी ऑक्सीजन है, इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है 2 है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन का 1 है. वाटर लिखते हैं, तो वाटर कैसे लिख रहे H2O, तो H2O क्या, बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन हैविंग द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन के साथ जो है ना वो कंबाइन हो रहा है, तो उसका कैपेसिटी कितना है 2. सो दिस द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विथ अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट के साथ, तो कितने एलिमेंट के साथ वो कंबाइन हो सकता है टू फॉर्म ए कंपाउंड और ए मॉलिक्यूल. कंपाउंड और मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करने में वो कितना एलिमेंट का जो है ना वो के साथ कंबाइन हो सकता है, उसको बोलेंगे यहाँ पे वैलेंसीज. किसी का 1 वैलेंसी होगा, किसी का 2 होगा, किसी का 3 होगा, किसी का 4 होगा, तो इसको बोलेंगे यहाँ पे वैलेंसीज. फॉर एग्जांपल अभी कार्बन है, कार्बन, तो कार्बन का वैलेंसी जो है ना यहाँ पे 4 रहता है 4. तो कार्बन हैविंग वैलेंसी 4, बिकॉज ऑफ दिस रीजन द कार्बन हैविंग 4 कंबाइनिंग कैपेसिटी विद अदर एलिमेंट्स. 4 अलग जो एलिमेंट के साथ जो है वो कंबाइन हो सकता है. फॉर एग्जांपल जैसे कि हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, दिस इज अ मीथेन, ये जो है ना मीथेन है, दिस इज अ गैस. CH4 सिंपल में हम जो है इसको CH4 लिखते हैं इसको. तो कार्बन का कंबाइनिंग कैपेसिटी 4. तो इस तरीके से जो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स आर नोन एज वैलेंसीज, उनको बोलेंगे हम यहाँ पे वैलेंसीज. तो ये जो वैलेंसीज होते हैं, दीज आर द वैलेंसीज. मोनोवैलेंट होते हैं, डाइवैलेंट होते हैं, ट्राइवैलेंट होते हैं, टेट्रावैलेंट भी हो सकते हैं. ओके, सो इसमें जो है ना वैलेंसीज में टाइप्स, कितने टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ वैलेंसीज. टाइप्स ऑफ वैलेंसीज. फर्स्ट मोनोवैलेंट होता है, मोनोवैलेंट यानी ओनली 1 कंबाइनिंग कैपेसिटी.
जैसे कि हाइड्रोजन, उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है 1 है। जैसे कि सोडियम, उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है 1 है ना। तो ये जो है ना 1, पोटाशियम 1 है, या Cl 1 है, तो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी इसको मोनोवेलेंट बोलेंगे। सेकेंड वन डाइवेलेंट होते हैं। डाइवेलेंट यानी 2, उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना होगा 2 होगा। जैसे कि अभी बताया मैग्नीशियम +2 होता है, कैल्शियम होता है उसका भी 2 होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। जैसे कि अभी बताया ऑक्सीजन का 2 होता है। तो ये जो है ना उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 जिनका होता है उनको डाइवेलेंट बोलेंगे। नेक्स्ट थर्ड ट्राइवेलेंट, 3 कंबाइनिंग कैपेसिटी उसका जो है ना 3 होगा। कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना होगा उसका 3। 3 ಅದರದ್ದು ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಟ್ರೈವೆಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಿರ್ತೀವಿ, ಟ್ರೈವೆಲೆಂಟ್। ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ एग्जांपल ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत हम जो है ना जैसे कि Fe3+ है, इसका जो है ना 3 कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। तो उसी तरह बहुत सारे हम एग्जांपल्स जैसे कि स्कैंडियम होता है, इसका भी +3 होता है। तो ये जो 3 उसका जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। नेक्स्ट 4ನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಟೆಟ್ರಾವೆಲೆಂಟ್। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ 3 ಅಲ್ಲಿ। ಸೊ ಟೆಟ್ರಾವೆಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 4, ಇಲ್ಲಿ ಟಿನ್ ಬರುತ್ತೆ। ಸೊ ಟಿನ್ that having the combining capacity 4. So ಇದು valency sign types of valencies, valency ಮತ್ತದದ್ದು types, okay na. So this is the valency and the types of valencies. It will be continued in next class. Thank you.